Hello students, today I am going to discuss part 5th of molecular basis of inheritance. In this part we will discuss about the replication of DNA. First we will discuss about DNA replication. DNA replication is also known as DNA duplication. The meaning of DNA replication is to make another copy of itself. अपनी एक कॉपी और बनाने को DNA replication कहते हैं. DNA replication is semi-conservative, semi-discontinuous and bidirectional. As we have already discussed about the semi-conservative replication of DNA in eukaryote. Semi-conservative means that when a DNA is produced, suppose this is a parental DNA, when a new DNA is formed, then a strand will be parental and another strand will be newly formed. So half the strands of the parent DNA is conserved when DNA replication takes place. So DNA replication means making two copies of the DNA, and it is semi-conservative means that it preserves half the characteristics of the parent DNA. The parent DNA is shown in red color and newly formed DNA is shown in blue color. Semi-discontinuous we will discuss later, but in semi-discontinuous, at one strand of the template a continuous DNA is formed, but on the another strand the DNA formed in pieces. So it is semi-discontinuous. एक स्टैंड पर ये कंटिन्यूस स्टैंड सिंथेसाइज होती है, दूसरे स्टैंड पर ये पीसेस में सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसलिए इसको सेमी डिसकंटिन्यूस कहते हैं. बाई डायरेक्शनल आप देख सकते हैं यहाँ दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं. Whereas DNA replication prokaryote is semi-conservative, bidirectional and continuous. Both the strands synthesized are continuous. DNA replication begins at a particular spot called origin of replication or ORI. Bacterial and viral DNA has a single origin of replication, whereas in eukaryotes there are many origin of replication or multi repliconic. यहाँ पर एक चीज़ है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर साइट पर स्टार्ट होता है. वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं या ओरी. बैक्टीरियल और वायरल डीएनए में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यानी वहाँ पर किसी एक पॉइंट पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है और पूरा जीनोम एक बार में रेप्लिकेट हो जाता है. यूकैरियोट्स में डीएनए में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं एंड दे आर रेप्लिकेटेड सेपरेटली. रेप्लिकेशन इज एनर्जेटिकली हाईली एक्सपेंसिव. रेप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंस होती है. यही वजह है कि पूरी डीएनए स्ट्रैंड एक बार में सेपरेट नहीं होती है. ये एक शॉर्ट पीस इसका सेपरेट होगा, एक शॉर्ट पीस इसका सेपरेट होगा और एक वाई फोर्क स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता है. So for cell it is not energetically possible to separate both the strands completely. DNA replication takes place in the nucleus of the eukaryotic cell. DNA replication takes place during the S phase of the cell cycle. DNA replication requires deoxyribonucleotides. For polymerization of nucleotide, DNA-dependent DNA polymerase enzymes are required. The replication proceeds in 5' to 3' direction.
यहाँ पर जो पहली चीज़ है कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सेल साइकिल में 3 फेजेज होती हैं, G1, S और G2 फेज, और उसके S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। We also have discussed that DNA is a polymer of deoxyribonucleotides। तो एक नई स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त जब बनती है तो वहाँ पर बहुत सारे मोनोमर्स यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। इन मोनोमर्स को एक दूसरे से अटैच कर कर डीएनए बनाने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं इसको। डीएनए डिपेंडेंट वर्ड इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है और जो पेरेंट डीएनए है उसकी एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये एंजाइम बनाता है। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज नई स्ट्रैंड बनाने के लिए पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड पर डिपेंड करता है, जिसको हम टेम्पलेट भी कहते हैं। रेप्लिकेशन प्रोसीड ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। Suppose this is the parent DNA and we have discussed one of the characteristics of DNA that one strand they are anti-parallel. If one strand runs from 5' to 3', then another strand will run from 3' to 5' direction. इस पॉइंट का मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। ये न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड के लिए है। जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड होगी, अब अगर यहाँ से ये स्ट्रैंड बनना शुरू हो रही है तो ये पेरेंट का 3' एंड है, न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड का ये 5' होगा, ये 3' होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में ही होती है। इसी तरह से इस स्ट्रैंड पर जो डीएनए बनेगी ये पेरेंट का 5' है, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड का ये 3' होगा और ये 5' होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। Next is steps of DNA replication. First and important step of DNA replication is the activation of deoxyribonucleosides. 4 types of nucleotides of DNA: DE, deoxy, adenine monophosphate. All these are monophosphate and they are present in inactive form in the nucleoplasm of the nucleus. न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी ये मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए ये एटीपी से रिएक्ट करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि DEAMP एटीपी के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ से 2 ATP, क्योंकि ये ट्राईफॉस्फेट है, यहाँ से 2 ATP निकलकर इधर ऐड हो जाते हैं। यहाँ से 2 फॉस्फेट निकलकर इधर ऐड हो जाते हैं और ये एक एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, और ATP AMP में कन्वर्ट हो जाता है। इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम है। सेकेंड केस में भी आप देख सकते हैं कि ये डीऑक्सी थाइमीन मोनोफॉस्फेट है, ये ATP से 2 फॉस्फेट, यहाँ से ये 2 फॉस्फेट लेता है। इट टेक्स 2 फॉस्फेट फ्रॉम ATP, तो ये AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं ये AMP है और ये मोनोफॉस्फेट है। इसमें जब 2 फॉस्फेट ऐड हो जाएंगे तो ये ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की एक्टिवेटेड फॉर्म है। अब इस स्टेप्स का बेनिफिट क्या है, पर्पस क्या है? देयर आर 2 पर्पसेस। फर्स्ट, दे एक्ट एज ए सबस्ट्रेट। एक्टिवेट होने के बाद ये एक सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है और पॉलीमराइजेशन के वक्त न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA स्ट्रैंड बनाने के काम आता है।
Second is it provides energy for polymerization of nucleotides. इसको हम लास्ट में देखेंगे कि जब बेस पेयरिंग होती है तो वहाँ पर कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर ये जो दो फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं ये बाद में ये हाइड्रोलिसिस होता है इन फॉस्फेट का, फॉस्फेट बॉन्ड का, दो फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है उसका हाइड्रोलिसिस होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड फॉर्मेशन के वक्त डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेट होना ज़रूरी है। जब तक वो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगी आरएनए डीएनए पॉलीमरेज नई स्ट्रैंड नहीं बना पाएगा। यहाँ पर जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये इस तरह से ये सेपरेट हो जाती हैं स्ट्रैंड्स, और यहाँ पर एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाती है। इन डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर 3 एंजाइम हैं, एक हेलिकेज, दूसरा SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और तीसरा टोपो आइसोमरेज। ये तीनों एंजाइम मिलकर डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं ताकि डीएनए पॉलीमरेज एक नई स्ट्रैंड उस टेम्पलेट के कम्प्लीमेंट्री एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दें। सबसे पहले जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये इसको ब्रेक करता है। इसके ब्रेक करने से दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती हैं। तो हेलिकेज एंजाइम एक्ट्स ओवर ओरिसाइड एंड अनजिप द 2 strands of DNA. The separated strands are stabilized by means of single stranded binding protein. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि जो सेपरेटेड स्ट्रैंड हैं ये एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री होती हैं, अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से बनेंगे और दोबारा से वो अपने ओरिजिनल स्टेट यानी हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए आ जाएगा। इन डीएनए स्ट्रैंड्स जो सेपरेटेड या एक्सपोज डीएनए स्ट्रैंड्स हैं इसमें इनके बीच में दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही स्टेबलाइज रहे, तो इसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है जो अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से बाइंड होती हैं और इन दोनों स्ट्रैंड्स को ये सेपरेट रखती हैं। तीसरा एंजाइम है टोपो आइसोमरेज। जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होती हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट में सुपर कॉइलिंग पाई जाती है। इस सुपर कॉइलिंग को निकालने का काम, रिमूव करने का काम टोपो आइसोमरेज का है। टोपो आइसोमरेज क्या करता है कि ये निकिंग ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए and remove supercoiling. The point of separation proceeds slowly, forming Y-shaped structure called replication fork. तो यहाँ पर हमने 3 एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया। एक हेलिकेज है जो 2 स्ट्रैंड्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ये यहाँ पर वर्क करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होते ही दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती हैं। इन दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड को स्टेबलाइज रखने के लिए यानी सेपरेट रखने के लिए यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए के सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंड से ये बाइंड हो जाती हैं। इनके बाइंड होने से जो हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से नहीं बनते हैं और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट रखती हैं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का जो फंक्शन है वो एक्सपोज डीएनए स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग रखना है। यहाँ पर टोपो आइसोमरेज का क्या फंक्शन है, जब कोई भी डीएनए स्ट्रैंड्स, सपोज यहाँ पर देयर इज ए 10 टर्न्स, एक दूसरे के चारों तरफ ये 10 टाइम्स हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब इन स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है तो जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं।
ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक वायर होता है, अगर आप उसके दो वायर को पकड़कर एक दूसरे से सेपरेट करें, इनको एक दूसरे से सेपरेट करें, तो बाद वाले पार्ट में जो कॉइल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इन कॉइल्स के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि एक लिमिट के बाद डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगी, क्योंकि इस पार्ट में सुपर कॉइलिंग हो रही है, यहाँ पर सुपर कॉइलिंग हो रही है। अब इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने का काम टोपो आइसोमरेज का है। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, डीएनए की एक स्ट्रैंड में कट लगाता है और इसको डीएनए के चारों तरफ रोटेट करता है। डीएनए एक स्ट्रैंड्स को काटता है उस रीजन में जहाँ पर सुपर कॉइलिंग पाई जा रही है और इसको दूसरे स्ट्रैंड के चारों तरफ रोटेट करता है, जिससे रिमेनिंग पार्ट में सुपर कॉइलिंग कम हो जाती है। इन तीनों एंजाइम्स के एक्शन की वजह से जो एक डीएनए का ओपन पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये वाई शेप पार्ट है, ये इस तरह का वाई शेप पार्ट इसको बन रहा है यहाँ पर। इस वाई शेप पार्ट को हम रिप्लिकेशन 4 कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 एंजाइम डिस्कस किए। हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके डीएनए स्ट्रैंड्स को अनजिप करता है, सेपरेट करता है। दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये सेपरेटेड स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखता है, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रोकता है। तीसरा टोपो आइसोमरेज है जो सुपर कॉइलिंग वाले रीजन में, क्योंकि जब डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होती हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट में जो अनजिप नहीं हुआ है उस पार्ट में सुपर कॉइलिंग हो जाती है, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ जाते हैं, जिससे डीएनए अगर ज़्यादा सुपर कॉइलिंग होगी तो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगी। तो इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए टोपो आइसोमरेज डीएनए की एक स्ट्रैंड्स में कट लगाता है और इसको दूसरी स्ट्रैंड के चारों तरफ रोटेट कर देता है, जिससे कि सुपर कॉइलिंग ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज आरएनए प्राइमर। Formation of RNA primer cause initiation phase, because without the presence of RNA primer, DNA polymerase cannot add nucleotide, as there is no 3' OH group which is provided by the RNA primer. RNA primer is a small single-stranded RNA which is synthesized at the 5' end of the newly stranded strand with the help of an enzyme called primase. यहाँ पर क्या होता है कि जब डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, ये इसका 5' एंड है, ये 3' एंड, और ये एंटी पैरेलल है तो ये 3' होगा, ये 5' होगा। डीएनए पॉलीमरेज की कुछ लिमिटेशन है कि वो जब तक 3' OH ग्रुप नहीं होगा, 3' OH ग्रुप नहीं होगा, तब तक ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर सकता है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो 3' एंड पर प्रेजेंट होता है या थर्ड कार्बन से अटैच होता है, उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। इस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो जब भी एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है उस वक्त वहाँ पर एक 3' OH ग्रुप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी 3' OH ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होने जा रही है। तो यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चेन बनाता है। इसका ये 5' एंड होगा और ये 3' एंड होगा। इसी तरह से क्योंकि जो सिंथेसिस है वो 5' से 3' डायरेक्शन में होती है, इस पॉइंट पे भी यहाँ पर क्योंकि इसका 5' होगा और ये 3' एंड होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये 3' एंड है और यहाँ भी 3' एंड है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड कर देगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये 5' से 3' डायरेक्शन में
इस चेन पे एक कंटिन्यूस चेन सिंथेसाइज होती है। यहाँ पर भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज एक नई चेन बना देगा, लेकिन जब ये दोबारा से अनजिप होगा तो क्या होगा, यहाँ पर तो प्राइमेज एंजाइम का जो काम है वो एक बेस प्रोवाइड करना है, और ये बेस एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चेन होती है जो प्राइमेज एंजाइम के ज़रिए बनाई जाती है, और इसको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करता है, जिससे कि डीएनए पॉलीमरेज एक नया न्यूक्लियोटाइड इस आरएनए चेन से अटैच कर सकता है। नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेजेस। पॉलीमराइजेशन के लिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जो न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे से अटैच करके एक नई न्यूली सिंथेसाइज जो न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे से अटैच कर एक नई स्ट्रैंड बना देता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज 3rd, 2nd and 1st, and all of them add nucleotide in 5 prime to 3 prime direction. DNA polymerase 3rd is mainly involved in DNA replication. DNA polymerase 2nd is the minor repair enzyme, and DNA polymerase 1st is the major repair enzyme. Eukaryotes have 5 types of DNA polymerase: alpha, beta, gamma, delta and epsilon. Polymerase delta is involved in the replication of the leading strand, and polymerase epsilon is involved in the synthesis of lagging strand. Next is base pairing. The 2 separated DNA strands in replication 4 functions as template. Deoxyribonucleoside triphosphate यानी जो activated deoxyribonucleoside हैं come to lie opposite the nitrogenous bases of the exposed DNA template. Pyrophosphate is separated from the deoxyribonucleoside, which on hydrolysis by phosphatase enzyme release energy. तो यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि ये जो डीएनए सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड है, सपोज यहाँ पर एडेनिन है, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, तो इस एंड पर साइटोसिन होगा, यहाँ गुआनिन, एडेनिन और थाइमीन, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री होती हैं। अब जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगी इसको हम टेम्पलेट कहते हैं। जो पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, जो सेपरेटेड स्ट्रैंड ऑफ पेरेंट्स आर कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब यहाँ पर एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो साइटोसिन होगा, फिर गुआनिन होगा, फिर यहाँ पर एडेनिन होगा, फिर यहाँ थाइमीन होगा। यानी जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगी वो एक पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स यानी जिसको हम टेम्पलेट कह रहे हैं, इस टेम्पलेट की कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी। साइटोसिन के अगेंस्ट गुआनिन होगा, गुआनिन के अगेंस्ट साइटोसिन, एडेनिन के साथ थाइमीन की पेयरिंग होगी और थाइमीन की एडेनिन के साथ पेयरिंग होगी और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते जाएंगे। अब यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमने शुरू में ये डिस्कस किया था कि एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के क्या 2 डुअल पर्पसेस क्या हैं।
क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक हमने पढ़ा था, दे एक्ट्स एज ए सबस्ट्रेट एंड दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द polymerization of new nucleotide into the newly synthesized DNA strand। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्टिवेटेड फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, ये ट्राईफॉस्फेट था। अब यहाँ पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट हो गया और ये पायरोफॉस्फेट अलग हो जाता है। तो ये तो एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। ये पायरोफॉस्फेट की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये बॉन्ड, इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज्ड इज यूज्ड इन मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन फ्री न्यूक्लियोटाइड्स and nitrogenous bases of the template। Next is chain formation or elongation of chain। Chain formation requires DNA polymerase, third in prokaryotes, and DNA polymerase delta and epsilon in eukaryotes। These enzymes add new nucleotide to DNA according to the nitrogenous bases of the DNA template। As the replication proceeds, new areas of parent DNA duplex, unwind and separate so that replication proceeds। RNA primer is removed and gap is filled with the complementary nucleotides by DNA polymerase 1। DNA polymerase can polymerize nucleotide only in 5' to 3' direction because it adds new nucleotides at the 3' end। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेलिकेज एंजाइम है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और जिसकी वजह से ये पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो रही है। इस पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स को हम डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। इसे हम डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। और ये जो कलर्ड येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन कलर के जो लाइंस हैं ये न्यूक्लियोटाइड हैं और जो न्यूली सिंथेसाइज ये डीएनए पॉलीमरेज हैं। डीएनए पॉलीमरेज एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज करती है लेकिन इसका डायरेक्शन 5' से 3' डायरेक्शन में होता है। इसी तरह से यहाँ भी ये 5' से 3' डायरेक्शन में होगा। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में जो नई स्ट्रैंड बनती है उसका जो डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन है वो 5' टू 3' डायरेक्शन में बनती है। तो यहाँ पर नई स्ट्रैंड बनाने के लिए प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है और यूकैरियोट्स के अंदर क्योंकि लीडिंग और लैगिंग दो स्ट्रैंड बनती है तो डेल्टा लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है और एप्सिलॉन लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स किसे कहते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए एक नई स्ट्रैंड, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नई स्ट्रैंड ये बनती जा रही है। Since two strands are anti-parallel, replication over the two templates thus proceed in opposite direction। That's why DNA replication in eukaryotes is known as bidirectional। यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर ये 5' से 3' डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पर ये 5' से 3' डायरेक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। इसीलिए इसको हम बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं कि यूकैरियोट्स में बाई डायरेक्शनल होती है। One strand of the DNA template with polarity 3' to 5' forms its complementary strands and is called the leading strand। Other template strand of DNA with polarity 5' to 3', only a short segment of DNA strand can be built in 5' to 3' direction
due to exposure of small stretch of DNA template at one time. These short segments of replicated DNA are called Okazaki fragments, and the DNA strands build up of Okazaki fragment is called the lagging strand. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो DNA टेम्पलेट है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जो रन कर रही है, इस स्ट्रैंड्स को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और लीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, जो न्यूली फॉर्म डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, इसे आप देखेंगे ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनती जा रही है। जबकि वो स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए यानी टेम्पलेट की वो स्ट्रैंड जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रही है, इस स्ट्रैंड पर जो डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है ये पीसेज में हो रहा है। आप ये देखेंगे कि ये फर्स्ट पीस है, ये सेकंड पीस है, ये छोटे छोटे पीसेज यहाँ पर बन रहे हैं। ये जो छोटे छोटे पीसेज बनते हैं ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इन पीसेज को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, चेन फॉर्मेशन के वक्त ये एक डीएनए स्ट्रैंड है। ये डीएनए स्ट्रैंड जब सेपरेट होगी, सपोज ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड, ये एंटी पैरेलल 3 प्राइम 5 प्राइम। हेलिकेज एंजाइम जब इस स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा तो यहाँ पर दो चेन का, इन दोनों चेन का कुछ पार्ट सेपरेट हो जाता है। ये 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड है टू 5 प्राइम एंड दिस वन इज़ द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नई चेन बनती है उस चेन के फॉर्मेशन का डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। यानी इस स्ट्रैंड पर जो डीएनए बनेगी वो इस डायरेक्शन में डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी, क्योंकि ये इसका 5 प्राइम एंड होगा, और इधर ये इस डायरेक्शन में बनेगी क्योंकि यहाँ पर नई स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, क्योंकि ये 5 प्राइम है तो इधर 3 प्राइम आना चाहिए। अब यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर एक प्राइमर ऐड होता है एट द 5 प्राइम एंड, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जब तक 3 प्राइम OH ग्रुप नहीं होगा, ये 5 प्राइम एंड है तो ये 3 प्राइम OH एंड होगा। 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी तरह से यहाँ पर प्राइमर ऐड होगा, ये इसका 5 प्राइम एंड होगा और ये 3 प्राइम OH एंड होगा। अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा और इस डायरेक्शन में डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में चेन बन रही है, ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में चेन बन रही है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे कि ये चेन और अनजिप हो जाती है, और इस सेकेंड स्टेप में जो चेन बनी थी, यहाँ पर प्राइमर ऐड हुआ था, इससे पहले इसका एंड हम मार्क कर लेते हैं। ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। यहाँ पर जो चेन बनी थी वो इतनी चेन बनी थी, ये इसका 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम OH एंड होगा, क्योंकि 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो प्राइमर ऐड हुआ था वो इस जगह पर हुआ था खुलने से पहले, क्योंकि ये पार्ट तो खुला नहीं था इतना, तो यहाँ पर प्राइमर ऐड हुआ था। अब यहाँ पर जो नई चेन बनी वो यहाँ तक बनी, ये इसका 3 प्राइम एंड होगा, ये इसका 5 प्राइम एंड होगा, क्योंकि अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर है और ये चेन अब इसके आगे नहीं बन सकती क्योंकि टेम्पलेट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस स्टैंड पर
अभी टेम्पलेट प्रेजेंट है क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ तो ये कंटिन्यूसली चेन सिंथेसाइज होती रहती है आगे की तरफ। यहाँ पर फिर से 3 प्राइम OH ग्रुप होगा, लेकिन इस दूसरे स्ट्रैंड पर क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से प्राइमर ऐड होगा और एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी। यानी ये 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड होगा। इसके बाद ये चेन अगर फिर से और ओपन होती है, ये 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। यहाँ पर एक प्राइमर ऐड हुआ था और ये चेन पहले यहाँ तक बनी थी, फिर इसके आगे ये कंटिन्यूसली बनती जा रही है, इतनी और बन गई। ये इसका 5 प्राइम एंड है। यहाँ पर 3 प्राइम OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरह का है कि 3 प्राइम OH ग्रुप हमेशा यहाँ अवेलेबल रहता है और DNA पॉलीमरेज को नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पर ये हमेशा अवेलेबल है। तो ये स्ट्रैंड आगे इसी तरह से बनती चली जाएगी। अब यहाँ पर ये 3 प्राइम OH प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ पर प्राइमर पहले इतनी चेन खुली थी तो प्राइमर ऐड हुआ था यहाँ, और ये स्ट्रैंड यहाँ तक बन गई थी। फिर दोबारा से चेन ओपन हुई, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये प्राइमर ऐड हुआ था। ये चेन इतनी DNA चेन फिर से बनती है। अब क्योंकि ये और ज़्यादा एक्सपोज हो गया DNA, अब यहाँ दोबारा से प्राइमर ऐड होगा और ये स्ट्रैंड आगे की तरफ प्रोसीड करेगी। तो क्योंकि ये 3 प्राइम OH ग्रुप इस एंड पर है और ये 5 प्राइम एंड है, तो जितनी बार भी DNA स्ट्रैंड्स एक्सपोज होगी, खुलती चली जाएगी। इस DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन वाली है, इस पर बार बार प्राइमर ऐड होता है और जो DNA फ्रैगमेंट्स बनते हैं वो छोटे छोटे पीसेज में बनते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पीसेज हैं DNA के, इनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और ये DNA टेम्पलेट जिस पर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये पेरेंट स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। इसका ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन है। इस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो DNA रिप्लिकेशन हो रहा है उनके बीच में लैग आ रहा है, बीच बीच में RNA स्ट्रैंड है और DNA स्ट्रैंड भी बीच बीच में प्रेजेंट है। तो इस तरह से एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस चेन सिंथेसाइज होती रहती है, दूसरी टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो DNA फ्रैगमेंट्स हैं ये पीसेज में सिंथेसाइज होते हैं और इसमें बार बार प्राइमर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसको हम सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहते हैं।